चलो भैया बताओ मालूम हाँ बना दे जो आएगा जो मन बताओ छोड़िया हाँ दीपक Black body radiation loss. First है black body spectral emissive power. The spectral or monochromatic emissive power of a black surface is highest at every wavelength at any given temperature, and it is given by Max Planck's distribution law, which is based on the quantum theory. By the Max Planck distribution law, EB lambda T is equal to C1 upon lambda की power 5 E की power C2 upon lambda T minus 1. EB lambda equal to C1 lambda की power 5 E की power C2 upon lambda T. Minus 1, where C1 and C2 both are constant. The value of C1 is 2 pi h C0 square, which is equal to 3.742 into 10 to the power 8 watt per micrometer की power 4 C2 Hc upon Kb. The value of C2 is 1.438 into 10 to the power 4. Kb is Boltzmann constant. The value of Boltzmann constant is 1.3805 into 10 to the power minus 23. T temperature in Kelvin. Lambda wavelength in micrometer. EB lambda T is the spectral black body emissive power at absolute temperature T. The value is watt per meter square per micrometer. This relation is valid for black body spectral emission in a vacuum or gas. Only valid for a vacuum and gas. For other medium, the constant C1 should be replaced by C1 upon n square. This is replaced by C1 upon n, where n is the index refraction of the medium. The value of n depends on the medium. For vacuum or gas, it's 1. The value of n is 1. The black body spectral emissive power against wavelength lambda of a radiation of some spectral temperature. This is the wavelength micrometer, and this is EV lambda, spectral emissive power. And this is the maximum
and decreases from this one to this one. This is the point of location of peak of different temperature and wavelength. This is temperature is 50 Kelvin. This is 400 Kelvin and 300 Kelvin temperature, 800 Kelvin, and this is for 2000 Kelvin and 5800 Kelvin. And this is the radiation of solar radiation. The temperature of sun is 5800 Kelvin nearby. And this is the range of visible range. So after viewing this, we can say that the peak of E value E is maximum from lower wavelength side. If the wavelength is higher, then the value of spectral emissivity power EB lambda is decreases, because at this wavelength the value is this one. If the wavelength is decreases from this to this, then the value of emissive power is increases. At this point, this one, where the value of lambda is decreases. At this point, this much, and this point, and the maximum at sun radiation visible range, where the wavelength is shorter, and this is high wavelength. The plot indicates the following facts. First, the spectral emissive power of a black body is continuous function of wavelength. At any given temperature, it increases with wavelength, reaches a maximum value, and then decreases with increasing wavelength. At any given temperature, it increases with wavelength and reaches maximum value and then decreases with increasing wavelength. Suppose we select 300 Kelvin, then it increases from here to here, increases with increasing wavelength from this one to this one, reaching maximum at this wavelength and then decreases. Okay. The second, at any given wavelength, the emissive power increases with increasing the absolute temperature. Then absolute temperature is 50 Kelvin. The emissive power is this one. If it increases from 100 Kelvin, then power is this one. It increases continuously. 300 Kelvin, this one. 800 Kelvin, this one. 10 to the power 3. And then 10 to the power 5 at 2000 Kelvin. So each curve has a peak value of emissive power. Each curve has peak value. This is the locus of each peak value. As the temperature increases, the peak shifts towards smaller wavelength. The peak shifted towards the smaller wavelength. This is the higher wavelength and here the smaller wavelength. The peak shifted from here to here. The peak of the solar radiation at 5800 Kelvin reaches in visible range. This is the range of visible range. This one. This one is visible, 0.4 to 0.5. Nearby 0.4 micrometer. 0.4 micrometer is a visible range.
of the spectrum. Therefore, the sun is in tune with our eyes. We can see only visible range. On the other hand, the surface at temperature lesser than or equal to 800 Kelvin emit almost entirely in the infrared region, and thus radiation is not visible. Temperature less than equal to 800 Kelvin emit entirely in the infrared radiation. So this is black body spectral emissive power, Max Planck distribution. Now, next, Wien's displacement law. Spectral blackbody emission power distribution over a certain range of wavelength. It is observed that for a given temperature, there is a definite peak at a particular wavelength. The relationship between the wavelength and absolute temperature T at which Eb lambda reaches a maximum value is given by Wien's displacement law. It can be derived from Planck distribution law by applying the condition of maxima, differentiating Eb lambda with respect to lambda and substituting it 0. Now we have to differentiate this equation with respect to lambda. Then equal to 0. Put equal to 0, then 5. It comes 5 C1 lambda की power minus 6 e की power C2 upon lambda t minus 1 minus C1 lambda to the power minus 5 e की power C2 upon lambda t. डिफरेंशिएशन फर्स्ट इसके रेस्पेक्ट में होगा, सेकंड डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में होगा, है ना, 2 बार होगा डिफरेंशिएशन. ठीक है, फर्स्ट वन तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड अरेंज करेंगे तो e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1. हेलो. हाँ हेलो हेलो सर, उधर मैकाट्रॉनिक्स की क्लास भी चल रही है सर मैकाट्रॉनिक्स की क्लास भी चल रही है सर. 2 क्लास कैसे अटेंड होगी एक साथ? कब चालू हुई हो? हेलो सर ने भी अभी मैसेज सर टाइम सर ये आपका सर सेम टाइम दे रखा था सर. तो वहाँ कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? हेलो सर 4-5 उधर भी है शायद. सर 4-5 उधर भी है. चलो इसको तो खत्म करते हैं ना, अगली बार से देखेंगे. ठीक है, ठीक है यस सर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो x की वैल्यू आएगी C2 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम t और C2 की वैल्यू है कांस्टेंट है 1.438. अपन ने पहले डिस्कस किया था, तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा मैक्स इंटू टी, इसकी वैल्यू ये आएगी, है ना. ठीक है, where lambda max represent the wavelength corresponding to the maximum spectral blackbody emissive power at a given temperature T. ठीक है, valid for entire spectrum of wavelength of blackbody. अपन ने with respect to lambda इसको डिफरेंशिएशन किया है ना. ठीक है, तो lambda maximum की वैल्यू क्या हो जाएगी 2897.6 अपॉन टी. एट टेम्परेचर टी पे हो जाएगा मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. ठीक है, तो अपन अगर ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो ई बी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, ये 12.87 into 10 to the power minus
10 t to the power 5। अगर अपन ये वैल्यू पुट करते हैं लैम्डा इंटू टी की वैल्यू, यहाँ पर लैम्डा टी की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये वैल्यू आएगी भी लैम्डा की, ठीक है। और वो क्या होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम ई बी लैम्डा, ठीक है। तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। द टोटल एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी EB may be obtained by integrating Planck distribution equation over entire wavelength, EB equal to EB lambda d lambda 0 to infinity, है ना। ये जो कर्व था इसको अपन ने 0 से लेके ये पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम था, पर्टिकुलर वेवलेंथ पर था, अब अपन को पूरा इंटायर वेवलेंथ के लिए निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू इन्फिनिटी C1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 e की पावर C2 अपॉन लैम्डा t माइनस 1 d लैम्डा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पुट लैम्डा t इक्वल टू x और t d लैम्डा dx, है ना। ये इसमें पुट करते हैं, क्या आएगा C1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 e की पावर C2 अपॉन लैम्डा t माइनस 1 d लैम्डा, T4 कॉमन आ गया, t टू द पावर 4 0 से इन्फिनिटी, वापस अपन ने पुट कर दिया लैम्डा t इक्वल टू x, ये तो x हो गया, है ना, t d लैम्डा dx, है ना। तो dx अपॉन e की पावर C2 अपॉन x माइनस 1, है ना, x की पावर 5 आ गया, C2 अपॉन x को अपन ने y अज्यूम किया और dx क्या हो जाएगा माइनस C2 dy अपॉन y स्क्वायर, है ना। तो ये कॉमन आ गया एंड इंटीग्रेशन होगा y क्यूब dy अपॉन e की पावर y माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1 अपॉन n4, है ना, और n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक पुट करेंगे, तो इसको शॉर्ट सॉल्व करेंगे तो आएगा ये सिग्मा t की पावर 4, इसको अपन बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, है ना। इसमें सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ये आएगी वैल्यू, और T केल्विन में टेम्परेचर है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। अपन एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हेलो हेलो, यस सर, स्क्रीनशॉट लेते रहना, है ना, ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक है सर। ये एग्जांपल सॉल्व करो, नोट करो इसको। वन साइड ऑफ मेटेलिक प्लेट is insulated while the other side absorb a radiant heat flux of 900 watt per meter square. The convective heat transfer coefficient, चलो ये वाला करो, थर्ड एग्जांपल 12.3, है ना। A hot water radiator of overall dimension दे रखी है इसकी 2 into 1 into 0.2 meter is used to heat a room at 18 degree centigrade. The surface temperature of radiator 60 degree centigrade and the surface is black. The actual surface of radiator is 2.5 times the area of its envelope for convection, for which the convective coefficient is given. Hc की वैल्यू दी हुई है अपन को, है ना। Calculate the rate of heat loss from the radiator by convection and radiation. डायमेंशन दे रखी है h 2 मीटर, लेंथ 1 मीटर है, w 0.2 है, टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और
तो 273 ऐड करेंगे, 273 प्लस 60, तो केल्विन में कितना आएगा 333 केल्विन, है ना। टी इन्फिनिटी कितना है 291 केल्विन। एरिया अपन को गिवन है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के लिए, है ना, AS। HC की वैल्यू गिवन है, अपन को क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना। इसके कुछ अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन है द रेडिएटर इज ए ब्लैक बॉडी, अपन ने अज्यूम किया है ये ब्लैक बॉडी है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है। सेकंड, थर्ड है यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये यूनिफॉर्म है, यानी सराउंडिंग एयर के लिए यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होगा। तो अपन फर्स्ट निकालेंगे एरिया ऑफ रेडिएटर, कैसे निकालेंगे 2 पॉइंट क्या इसके दे रखी है अपन को 2 इंटू 1 इंटू 0.2 मीटर डायमेंशन है ना। और जिसमें h की वैल्यू क्या है 2 है, l की वैल्यू 1 है और w की वैल्यू है 0.2, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, है ना, ठीक है। तो लेंथ तो हो गई 1, 2 इंटू 1, है ना, 2 इंटू 1, और सेकंड ये भी 2 है तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और 0.2 इंटू 1, ठीक है। ये तो हाइट है, ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। H, L और W, है ना, इस तरह से आता है ये, हाइट लेंथ और विड्थ तीनों हो गए, है ना। ठीक है, एरिया निकालो। कन्वेक्शन के लिए क्या होगा एरिया 2.5 मल्टीप्लाई रेडिएशन, जो रेडिएशन के लिए, सबसे पहले अपन रेडिएशन के लिए एरिया निकालेंगे, है ना। ठीक है, इसमें डायग्राम दे रखा होगा, गिवन नहीं है। अब तो ये अज्यूम कर लो 5.2 मीटर स्क्वायर हो गया ए रेडिएशन, ठीक है। ए रेडिएशन आ गया तो अपन क्यू निकालेंगे, क्यू कितना होगा सिग्मा टी टू द पावर 4, है ना। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू निकालने के लिए, ए रेडिएशन इंटू सिग्मा की वैल्यू ये हो गई, और टी क्या होगा टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, टी एस की पावर 4 माइनस टी इन्फिनिटी की पावर 4। इसको सॉल्व करो, क्या रहेगा निकालो। ये जो वैल्यू है पर यूनिट एरिया है, ठीक है। ये क्या है Q अपॉन A इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, ठीक है। तो Q क्या होगी, Q इक्वल टू A इंटू सिग्मा टी टू द पावर 4, ठीक है। ये Q की वैल्यू आएगी, ये इंटेंसिटी है Q अपॉन A, इसको क्या बोलेंगे अपन स्मॉल q, स्मॉल q इक्वल टू Q अपॉन A इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। अब सरफेस का टेम्परेचर गिवन है अपन को और टी इन्फिनिटी भी गिवन है, तो माइनस करेंगे अपन सिग्मा, तो ये क्या होगा सिग्मा टी एस की पावर 4 माइनस सिग्मा टी इन्फिनिटी की पावर 4, सिग्मा कॉमन आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा टी एस की पावर 4 माइनस टी इन्फिनिटी
की पावर 4, ये हो जाएगा। ठीक है, ये गिवन है इसमें। सॉल्व करो, क्या आ रहा है इसका। हाँ विनोद, क्या वैल्यू आ रही है? हेलो सर 1511 आ रही है सर, 0.3 क्यू रेडिएशन। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट गिवन है 1.3, ये देखो HCA 1.3 डेल्टा T टू द पावर 1/3 है ना। इसमें डेल्टा T कितना है? 60 माइनस 18, इसकी पावर 1/3। कैलकुलेट करेंगे तो HC की वैल्यू आएगी 4.51 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। ठीक है, और इसके लिए कन्वेक्शन के लिए एरिया 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसमें गिवन है ना। एरिया 2.5 टाइम्स है कन्वेक्शन के लिए, 2.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 मीटर स्क्वायर रहेगा ये, है ना। एरिया हो गया। तो क्यू कन्वेक्शन कैसे निकालेंगे? HA/dt, H की वैल्यू ये आ गई, A की वैल्यू ये आ गई, और dt 60 माइनस 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू कन्वेक्शन। निकालो, ये सॉल्व करो। और टोटल क्यू क्या होगा? रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन, दो तरह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन नहीं हो रहा है इसमें, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्यू आ जाएगा। क्यू कन्वेक्शन कितना आया? हेलो विनोद, हेलो। यस सर। क्या है ये वैल्यू क्यू Yes, कन्वेक्शन? sir. सर 2462.25 आ रही है सर, सही आ रही है। अब ऐड करो दोनों को, टोटल क्यू निकालो। Sir, 3973.6. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर एन इंडस्ट्रियल फर्नेस ब्लैक बॉडी, है ना। अपन को टेम्परेचर दे रखा है 2650 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। और इसके लिए अपन को स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एट लैम्डा 1.2 माइक्रोमीटर, wavelength at which the emissive power is maximum spectral emissive power, total emissive power or total emissive power for of the furnace if it is treated as a gray and diffuse body। ठीक है, तो टेम्परेचर को अपन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। फर्स्ट अपन को क्या निकालना है? ईबी लैम्डा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और लैम्डा कितने पे निकालनी है? 1.2 पर ईबी लैम्डा। सेकेंड अपन को लैम्डा मैक्स निकालनी है ना। थर्ड ईबी लैम्डा मैक्स, और नेक्स्ट अपन को निकालनी है ईबी टोटल एमिसिव पावर, और लास्ट में निकालनी है एमिसिव पावर अपन को 0.9 के लिए निकालनी है ना, 0.9 से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ईबी लैम्डा, है ना। ठीक है, देखो ये अपन ने अभी सॉल्व किया था ईबी लैम्डा, ये ईबी लैम्डा है ना। ईबी लैम्डा अपन को निकालना है, ठीक है।
और अपन ने यहाँ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से निकाला था मैक्सिमम, है ना, ये आ रहा था, और ईबी लैम्डा मैक्सिमम ये वैल्यू आ रही थी, है ना। तो ये ईबी लैम्डा मैक्सिमम का फॉर्मूला पुट करना है ना, वो निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये फॉर्मूला प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का है, C1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 e की पावर C2 अपॉन लैम्डा t माइनस 1। C1 और C2 गिवन है ना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 1.2 माइक्रोमीटर पे निकालो, इसमें पुट करो वैल्यू, ईबी लैम्डा की वैल्यू निकालो। लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 1.2, है ना। ये दोनों वैल्यू 1.2 पुट करो, इसमें सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। हेलो, ईबी लैम्डा निकाला, निकाल रहा हूँ सर, निकाल। ईबी लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, हेलो, हाँ विनोद, हेलो, यस सर, क्या वैल्यू आई ईबी लैम्डा, निकाल रहा हूँ सर।
किसी की नहीं वैल्यू है? हेलो, आंसर किसी का नहीं आया? विनोद, हेलो, हाँ, नहीं आई क्या वैल्यू किसी की भी? आ गई सर। क्या आई है? आगे सर आगे 2.53 into 10 की पावर 6। ठीक है, अपन को सेकंड क्या निकालना है? द वेवलेंथ एट विच द एमिसिव पावर इज मैक्सिमम, है ना? अपने पास ये फॉर्मूला है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से क्या है, लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी इक्वल टू ए वैल्यू है ना, जो अपन को गिवन है। तो इसमें अपन पुट करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम निकालो आप। लैम्डा मैक्सिमम क्या रहेगा इसके लिए? टी की वैल्यू अपन को ये रखनी है ना, जो अपन ने कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन में गिवन है 2923 केल्विन में कन्वर्ट कर, डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 से ऐड करेंगे इसको तो 2923 केल्विन आ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर अपन को क्वेश्चन में गिवन है 2650 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 2650 प्लस 273, तो ये आ जाएगा केल्विन में 2923। ठीक है, इस फॉर्मूले में अपन पुट करेंगे और लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे। क्या आ रही है लैम्डा मैक्सिमम? हेलो, सर 0.9912 आ रही है सर। मैक्सिमम आ गई ना। अब अपन को क्या निकालना है? मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ईबी लैम्डा मैक्सिमम।